Hello everyone, I'm Muskan Modgil and welcome back to my YouTube channel. So currently I'm a fourth year veterinary student and there's this series that I've been uploading on my YouTube channel, which is what books you should refer in so and so year of your veterinary science. So usually I wait until I myself pass the whole year so that I'm at a better place of recommending books to you. So I must say that there are a lot of books out there, a lot of websites, a lot of studying materials that you can refer to, and आप जिस भी इंसान के पास जाओगे they'll recommend you something or the other which fits best to his or her own interest. So ultimately बहुत confusing हो जाता है that what we should be referring to and what we should be choosing. So in this video I'll be sharing with you what books and methods I refer during my third year of veterinary science and the mistakes that I did, the things that I wish I knew earlier, so that you don't have to be as clueless as I was. So without any further delay, let's get started. So as always, let's start with a brief outline of the whole year. In your third year BVSC and AH, you'll need to study 7 subjects in total, out of which 5 subjects are theory based, as usual. Like of course they'll be having their own practical classes as well. And there are 2 subjects for which you need to study only practical portions. There won't be any theory classes as such for them. So here are all your veterinary third year subjects that you'll need to study along with their credit hours. So in terms of difficulty, I would say that there's a gradual leap from first to third year in terms of your subjects. For example, in veterinary first year, we needed to study only 3 subjects. Second year was with 5 subjects, and in third year you have to study 7 subjects in total. So there are a few subjects and few units in each subject that are really interesting and a few practicals that you'll be really looking forward to. Also in your BVSC and AH third year, you have to finally and officially start visiting your college clinics at least 1 slot per week according to the latest VCI syllabus. So there's a lot of new things happening and I'm sure you'll be loving your veterinary third year, even though the subjects like pharmacology exist. But yeah, I think it will be a lot of fun. All that being said, now let's finally focus on the books, starting with the most dreaded subject of all time, veterinary pharmacology. So this subject has the most number of credit hours in your veterinary third year and I'm sure आपने बहुत सारे memes देखे होंगे pharmacology के बारे में. आपने अपने सीनियर से या और फ्रेंड से भी सुना होगा हाउ बोरिंग एंड डिफिकल्ट फार्माकोलॉजी कैन गेट, बट इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स भी है. लाइक मुझे पर्सनली कीमोथेरेपी बहुत पसंद थी. ऑल्सो द प्रैक्टिकल्स ऑफ वेटनरी फार्माकोलॉजी आर नॉट दैट बैड बिकॉज यू विल बी नीडिंग टू फॉर्मुलेट ऑल दीज मेडिसिन्स, जेलीज, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स एटसेट्रा फ्रॉम स्क्रैच. सो अगर वेटनरी फार्माकोलॉजी की बुक की बात करें, सो देयर इज दिस बुक बाय डॉक्टर HS संधू जो मैंने अपनी वेटनरी फार्माकोलॉजी के लिए रेफर की थी, विच इज एसेंशियल्स ऑफ वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स. तो मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, द थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस बुक इज कि इस बुक में सब कुछ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया हुआ है. सो एज यू कैन सी, स्टार्टिंग विद जनरल फार्माकोलॉजी, हमारा फर्स्ट यूनिट इज जनरल वेटनरी फार्माकोलॉजी. उसके बाद आपके पास ANS और CNS के ड्रग्स हैं. देन यू हैव ऑटोकॉइड्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. उसके बाद फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन एंड ऑल द वाइटामिन्स. इसका मतलब उन्होंने सारे सिस्टम्स को अलग से कैटेगराइज किया हुआ है फॉर योर सिस्टेमिक वेटनरी फार्माकोलॉजी. एंड उसके बाद वी फाइनली हैव अ सेक्शन ऑफ कीमोथेरेपी. सो वाज दिस बुक यूजफुल? येस. इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियसली येस, बिकॉज फार्माकोलॉजी आपको, अगर आप फोर्थ ईयर में भी जाओगे, दिस वेटनरी मेडिसिन, या फिर आप क्लिनिक्स भी अटेंड कर रहे हो अगर, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट डिफरेंट ड्रग्स. सल्फोनामाइड्स हो गए, क्विनोलॉन्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रग है, यू शुड बी नोइंग द बेसिक थिंग्स अबाउट इट. तो आपको ये बुक हेल्प करेगी टू ब्रश अप योर स्किल्स कॉन्स्टेंटली आगे के लिए, या आगे आपको अगर कोई कभी कहीं भी जरूरत पड़ती है, इवन फॉर योर प्रिपरेशन फॉर टेस्ट. सो दिस बुक इज अ रियली गुड बुक, आई मस्ट से. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ़ यू आर समवन हु प्रेफर्स रीडिंग नोट्स एंड आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर टीचर से क्लास नोट्स मिल रहे हैं विच आर रियली गुड. तो मैंने भी क्लास नोट्स और हमारे यूनिवर्सिटी नोट्स रेफर किए थे फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी. सो द क्वेश्चन एट द एंड इज इफ यू रियली नीड टू बाय इट. सो दिस बुक हैज़ एन MRP ऑफ 950 रुपीज़. मैं आपको नीचे लिंक्स दे दूंगी आपको, अगर आपकी Amazon या फ्लिपकार्ट वगैरह से आपको मंगवाना है, या फिर आप इवन लोकल बुक स्टोर से आप खरीदना चाहते हो. बट देन देयर इज ऑल्सो द ऑप्शन
कि आपके पास ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपीज होती है हमारे पास सारी बुक्स की। अगर आपको लग रहा है कि यू डू नॉट नीड टू स्पेंड 950 रुपीज़ ऑन द बुक, और अगर आपको लग रहा है कि आपका सही चल रहा है फार्माकोलॉजी फ्रॉम द नोट्स एंड क्लास में, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस बुक की सॉफ्ट कॉपी में से यू कैन प्रिंट आउट सर्टेन चैप्टर्स जो आपको लग रहा है कि यू नीड टू फोकस मोर ऑन, या आपको नोट्स में से समझ नहीं आ रहा है। सो इवन दो आई वुड रिकमेंड यू बाइंग दिस होल बुक, बिकॉज जो पूरी बुक में एसेंस है दैट कैन नॉट बी कवर्ड विद सॉफ्ट कॉपीज एंड with printouts, but then the final choice is anyways yours, but it is a good book. So that was it, and अब आपकी मर्जी, आप खरीदनी है, आपको printouts निकलवाने हैं या आपको क्लास नोट्स फॉलो करने हैं, it's all up to you. Next, let's talk about veterinary parasitology. So book की बात करें तो this is the book which I read during my third year, which is textbook of veterinary parasitology by B.B. Bhatia, K.M.L. Pathak and P.D. Juyal. बुक की बात करें तो बहुत ही छोटी सी, कंसाइज सी, प्यारी सी बुक है टू रेफर। इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स दिए गए हैं एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो दिस बुक इज़ वेरी इजी टू रीड एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर हम फिर से वही 3 पैरामीटर्स कंसिडर करें, सो दिस बुक कॉस्ट्स यू अराउंड 550 रुपीज़। देन अगेन प्राइस ज़्यादा कम होते रहते हैं, यू कैन कॉल योर लोकल बुक स्टोर एज वेल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जो हमारे क्लास नोट्स है, जो हमारे प्रोफेसर्स या फिर हमें यूनिवर्सिटी से मिले थे रिगार्डिंग वेटनरी पैरासिटोलॉजी, या फिर हमारे टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, इट वॉज सो गुड कि मुझे ये बुक सिर्फ मैंने एज अ रेफरेंस बुक रखी हुई थी कि अगर कुछ टॉपिक्स मैंने रेफर करने हैं या प्रैक्टिकल्स में मुझे कुछ डायग्राम्स चाहिए, अदरवाइज मेरा नोट्स से काम चल गया था। नाउ इट्स योर कॉल how well you are understanding parasitology in your class, through your teachers, through your class notes. Else, this is a really good book to invest in. So if we talk about veterinary parasitology as a subject, I personally found it really interesting because ट्रेमेटोड्स हैं, नेमेटोड्स हैं, सेस्टोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, और उसमें से आप वो भी पढ़ोगे टिक्स एंड माइट्स एंड फ्लीज। सो दिस इज समथिंग यू सी ऑन अ डे टू डे बेसिस, राइट। सो अगर हम बात करें कि आप क्लिनिक्स विजिट कर रहे हो या आपके पास घर पे पेट डॉग्स एंड कैट्स हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो और आपके घर में कैटल्स एंड बफलोज रखी हुई हैं, सो दीज टिक्स एंड माइट्स और जो पैरासाइट्स हैं, दैट इज समथिंग यू सी प्रैक्टिकली ऑन अ डे टू डे बेसिस, विच मेक्स दिस सब्जेक्ट अ बिट मोर रिलेटेबल एंड इंटरेस्टिंग। सिलेबस की बात करें तो इट इज़ अ बिट वास्ट, और आपको बहुत सी चीज़ें जैसे बस रट्टा मारनी पड़ेंगी। बहुत से बड़े बड़े पैरासाइट्स के साइंटिफिक नेम्स हैं, बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट इफ़ यू फोकस ऑन वेटनरी पैरासिटोलॉजी एंड आप क्लासेस को अच्छे से सुन रहे हो, इफ़ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द सब्जेक्ट, यू विल रियली enjoy this subject throughout your third year. Now let's talk about our next subject, which is extension education. So during third year, most people find extension education really boring and dry because ये सारा subject almost रट्टा मारने वाला है. This subject focuses on what was the history of extension education in India, what are the current schemes under government, or what is the future prospects of extension education. इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, एंड स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा. येस, द इनिशियल फ्यू यूनिट्स सारे रटाफिकेशन है, बीच में सोशियोलॉजी वगैरह भी आ जाएगी, बाद में इकोनॉमिक्स है, एंड देन देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप. सो पर्सनली अगर बात करूँ तो आई लव्ड एक्सटेंशन एजुकेशन ड्यूरिंग माई थर्ड ईयर, एंड मोस्ट पीपल विल बी लाइक यार एक्सटेंशन क्यों पसंद है तुझे. सो येस, इट इज सॉर्ट ऑफ अ बिट बोरिंग ब्लैंड सब्जेक्ट, बट इट कैन गेट इंटरेस्टिंग एट सम पॉइंट्स. बुक्स की अगर बात करें, सो यू डू नॉट नीड टू रेफर एनी पर्टिकुलर बुक. आप क्लास नोट्स समझो, आप जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड आप क्लास में सुनो. इवन दो आई डिड बाय दिस बुक विच इज न्यू विशाल्स इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, सारे आपके वो यूनिट्स हैं उसको बहुत ही प्रिसाइज दिया हुआ है. जैसे एक्सटेंशन की अगर बात करें तो एक एक वर्ड में ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप रेफर कर सकते हो. बट अदर देन दैट इस बुक में सिर्फ क्वेश्चंस थे अगर आपको रिवाइज करने हैं तो. बट अगर पढ़ने की बात करें, सो योर क्लास नोट्स आर मोर देन इनफ. सो यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग. आई नो मैंने फर्स्ट सेकंड जो ईयर की बुक्स हैं उसमें भी बहुत बार बोला है कि मैं आपको LPM नोट्स दूंगी, मैं आपको AGV के नोट्स दूंगी, बट अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए हैं, सो विच आई एम रियली सॉरी अबाउट.
बट नेक्स्ट वीक के एंड तक मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको अपने एक्सटेंशन के और एलपीएम के नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूं. नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज एलपीटी, विच इज लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी. सो आपको ये समझना होगा कि देर आर वेरियस सब यूनिट्स इन दिस होल कोर्स, out of which the first unit focuses on milk, then there's wool, उसके बाद abattoir practices और meat science आती है. So the thing is you cannot find all these topics in one single book जो specifically हमारे syllabus के हिसाब से बनी हो. However हर unit के लिए अलग अलग books है. So starting with dairy technology, there is this book by Sukumar Day which is really useful. Personally अगर बात करूँ तो मैंने ये book रेफर नहीं की थी, मेरे पास बस एक सॉफ्ट कॉपी थी which also I hardly opened it once or twice during my whole third year. The thing is कि मुझे नोट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे थे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से, एंड हमारे क्लास नोट्स भी काफ़ी अच्छे थे. मोर ओवर मिल्क मुझे पर्सनली उतना डिफिकल्ट नहीं लगा, एंड जो हमारे कोर्स टीचर थे दैट ही वाज द डीन ऑफ आवर कॉलेज, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, द मिल्क का यूनिट पढ़ाया था. सो मुझे खास ज़रूरत नहीं लगी कि मेरे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी नोट्स हैं, डीन सर के नोट्स हैं, सो आई शुड बी हैविंग वन मोर बुक टू रेफर. ईजी सब्जेक्ट है, समझ आ जाएगा, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वूल साइंस. वूल साइंस इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट. बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशंस हैं एंड प्रोसेसेस हैं. तो इसके लिए भी हमें 2-3 PDFs मिली थी फ्रॉम आवर टीचर्स विच वॉज इन माई ओपिनियन मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. देन देयर इज एबेटोर एंड मीट साइंस. तो यहाँ पे आके मुझे लगा था कि पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, मैंने एक बुक भी नहीं ली. सो आई थिंक आई शुड बी कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन, एंड मुझे पढ़नी चाहिए कोई ना कोई बुक. सो एबेटोर के यूनिट के लिए हमारे सर ने हमें बुक रेफर की थी विच इज़ मॉडर्न एबेटोर प्रैक्टिसेस एंड एनिमल बाय प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी. दिस इज़ बाय BD शर्मा. बहुत ही छोटी बुक है, लिटरली इट हैज़ ओनली 170 पेजेस इंक्लूडिंग इंडेक्स एंड जो लास्ट में ग्लॉसरी वगैरह दी होती है. मैं आपको जल्दी से इंडेक्स दिखा देती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो कि मीट एनिमल्स है, ऑर्गेनाइजेशन, लेआउट है, प्री स्लॉटर केयर है. उसके बाद हम नीचे जाए तो स्लॉटरिंग, ड्रेसिंग है, फिर स्कोप है, प्लान, यूटिलाइजेशन ऑफ सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं. और ये बुक मैंने पढ़ी भी बहुत है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इसी में से किए थे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए भी. बहुत ही छोटी सी कंपैक्ट सी बुक है, एंड दिस बुक प्लस योर क्लास नोट्स कैन टेक योर एबेटोर और ये जो बाय प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी वाला यूनिट है टू अ होल न्यू लेवल. आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी इस बुक से, एंड दिस बुक प्लस योर क्लास नोट्स इज सफिशिएंट फॉर मॉडर्न एबेटोर, आपका जो एबेटोर वाला यूनिट होता है. सो दिस आई वुड रियली रिकमेंड दिस बुक. अमेजिंग बुक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फाइनल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट विच इज VPH, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी. तो VPH की बात करें अगर, सो मुझे कोई ऐसी बुक नहीं मिली थी जहाँ पे सारा कुछ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हो. देयर वाज bunch of topics in a different book, bunch of topics in another book. क्योंकि VPH के कभी आप जूनोटिक डिजीज पढ़ रहे हो, कभी आप पब्लिक हेल्थ का पढ़ रहे हो, कभी आप कैसे ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स है वो समझ रहे हो. तो इट इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कंपाइल्ड इनटू वन कोर्स. इस वजह से मुझे तो पर्सनली नहीं मिली थी कि जो मुझे सारी अपना जो टॉपिक है वो मुझे एक ही बुक में मिल जाए. सो फॉर VPH हमारे टीचर्स ने हमें 1-2 बुक्स की सॉफ्ट कॉपी शेयर की थी फॉर रेफरेंस. नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट आर प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स ऑफ वेटनरी थर्ड ईयर. फर्स्ट इज LFP, लाइफ स्टॉक फार्म प्रैक्टिसेस, और उसके बाद है VCP विच इज वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. LFP लाइफ स्टॉक फार्म प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो बेसिकली आपको इस सब्जेक्ट में आपका LPM और न्यूट्रिशन सॉर्ट ऑफ रिवाइज हो रहा है. वाई? बिकॉज LFP इज ऑल अबाउट कि आपको अपना फार्म कैसे मैनेज करना है, एनिमल्स रिस्ट्रेन कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, उनकी वैक्सीनेशन कैसी है, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द डिजीजेज और उनकी न्यूट्रिशन, उनका एक दिन का खाना, और हाउ डू यू मैनेज योर राशन. दिस कोर्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न. हमारे में उन्होंने बोल दिया था कि आप खुद बता दो आपके क्या आपको प्रैक्टिकल्स कवर करने हैं. इसमें दे गेव अस अ प्रैक्टिकल मैनुअल जहाँ पे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस थी. पिग के लिए अलग, शीप गोट के लिए अलग, देन ऑब्वियसली कैटल बफलोज के लिए अलग, एंड सेक्शन वॉज डेडिकेटेड टू न्यूट्रिशन एंड पोल्ट्री एज वेल. तो हमारा ओवरऑल काफ़ी न्यूट्रिशन और LPM ही रिवाइज हुआ था इस कोर्स में. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था जहाँ पे बहुत सारे लाइफ स्टॉक फार्म प्रैक्टिसेस हमें डेमॉन्स्ट्रेट करने को मिली थी अलग अलग बच्चों को.
नेक्स्ट अगर हम बात करें VCP की, वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की, तो इसमें आपको हफ्ते में 1 स्लॉट यू हैव टू स्टार्ट विजिटिंग योर कॉलेज क्लिनिक्स ऑफिशियली। वहाँ पे आपको जो केसेस आ रहे हैं आपको उनको ऑब्जर्व करना है। सिंस यूर अ थर्ड ईयर वेटनरी स्टूडेंट, ऑब्वियसली आपके फोर्थ ईयर के सीनियर्स होंगे, आपके इंटर्न्स होंगे, अगर यू आर स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस, तो मे बी MBSc और PhD के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो क्लिनिक्स में, विच गिव्स यू वेरी लिटिल स्कोप कि आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ले पाओगे किसी चीज़ की। हाउएवर थर्ड ईयर इज ऑल अबाउट understanding how clinics work and understanding the basic things that clinics has. तो मैं ट्राई करूंगी ये वीडियो सेपरेट से बनाऊं कि थर्ड ईयर एज अ थर्ड ईयर वेटनरी स्टूडेंट आपको क्लिनिक्स में क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे जाना है, कैसे बिहेव करना है. सो आई एम प्लानिंग टू अपलोड द वीडियो सून. If you would like to see that video, please comment down below and let me know. So this was all about our 5 theoretical subjects and 2 practical subjects. अगर आपको किसी भी चीज़ की और ज़रूरत है, आपके मन में कोई भी और डाउट है, let me know in the comment section below. मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी बुक्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी and you will be good to go for your veterinary third year. So that was all for the video, guys. Thank you so much for watching. If you like my content, please make sure to like, subscribe and share this video. Thank you so much for watching. Bye.